pair of linear equations in two variables. In previous section, we studied linear equation in one variable and linear equations in two variables. In this section, we studied about the pair of linear equations in two variables. A pair of linear equations in two variables is said to form a system of simultaneous linear equations. Linear equations का pair, for example, 2x plus 3y minus 7 equal to 0 and 9x minus 2y plus 8 equal to 0. It is the pair of linear equations in two variables. Here, two variables x and y both have highest degree 1. That's why we can say it is the pair of linear equations in two variables. Another example, 5x equal to y and minus 7x plus 2y plus 3 equal to 0. The general form a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Here a1, b1, c1, a2, b2, c2 are all real numbers and a1 square plus b1 square is not equal to 0. a2 square plus b2 square is not equal to 0. As we studied 2x plus 3y minus 7 equal to 0. Here a1 equal to 2 and b1 equal to 3 and c1 equal to minus 7. Another equation 9x minus 2y plus 8 equal to 0. Here a2 equal to 9, b2 equal to minus 2 and c2 equal to 8. Here a1, b1, c1, a2, b2, c2 all are real numbers. Real numbers are those numbers which can be represented on number line, or we can say rational and irrational number. Geometric representation of a pair of linear equations in two variables. We know that the geometric or graphical representation of linear equations in two variables is a straight line. हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है. जब हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है. इफ वी टेक a pair of linear equations in two variables will be two straight lines which are considered together. We also know that when there are two lines in a plane, the two lines will intersect at one point. क्या होता है कि वो दोनों लाइन एक पॉइंट पर कट करती हैं. They will not intersect, they are parallel. वो पैरेलल हो सकती हैं. The two lines will be coincident और वो दोनों लाइन एक के ऊपर एक हो जाएगी. इट्स मीन कि वो एक ही लाइन दिखाई देगी. लीनियर इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली. इसको हम अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कंसिस्टेंट सिस्टम्स और इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स. अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस, एक सिस्टम, एक प्रणाली एक साथ लीनियर इक्वेशंस की इससे हुई कंसिस्टेंट क्या कहलाएगी? कंसिस्टेंट कहलाती है इफ़ इट हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन. अगर इसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो. कम से कम एक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक से ज़्यादा कितने भी हो, एक से कम ना हो. अगर कोई दो लीनियर इक्वेशन जिनका एक सॉल्यूशन या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होता है, या इस सिस्टम को हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे. इनकंसिस्टेंट सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ऐसी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट. इट हैज़ नो सॉल्यूशन. अगर इसका कोई सॉल्यूशन ना हो तब हम इस सिस्टम को इनकंसिस्टेंट सिस्टम. लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल ऑन फॉर्मुलेशन अलजेब्रिक एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे कि अगर दो लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली शो करते हैं तो उनका ग्राफ या तो पैरेलल लाइन होता है या वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या वो कोइंसिडेंट होती हैं. 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, represent this situation algebraically and graphically. इस सिचुएशन को हम algebraically और graphically represent करना है. Let number of boys y, number of girls x. According to condition 1, x plus y equal to 10. According to condition 2, x equal to y plus 4. हम दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे. We put the value of x 10, 0 and 7. Then we get the value of y 0, 10 and 3. Another equation का सॉल्यूशन करेंगे. x equal to y plus 4, putting y equal to minus 4, 0 and 3 in the given equation. We get x equal to 0, 4 and 7.
यहाँ हमने क्या किया, कंडीशंस के अकॉर्डिंग दो इक्वेशंस थी, उन दोनों इक्वेशंस को बनाया। उसके बाद हमने एक वेरिएबल की वैल्यू को अपने पास से लेट करते हैं, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आती है। जैसा कि हम क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अगर हम एक वेरिएबल लेट करते रहेंगे दूसरा वेरिएबल आता रहता है। इसी तरह हमने यहाँ पर 3 वैल्यूज़ ली एक्स की पहली इक्वेशन में, y की 3 वैल्यू फाइंड आउट हुई। उसी तरह हमने दूसरी इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में हमने y की 3 वैल्यू लेट की हैं और x की 3 वैल्यू हमें प्राप्त हुई हैं। इस तरह से हम उसके बाद एक ग्राफ बनाते हैं और हम क्या देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, दोनों जो लाइंस, स्ट्रेट लाइंस हमें आ रही हैं वो 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और वो पॉइंट क्या है हमारा 7,3 है। इसका मतलब यहाँ पर ये शो होता है कि x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है। और यहाँ जब एक पॉइंट पर कट करती हैं इसका मतलब इसका वन सॉल्यूशन है। जब वन सॉल्यूशन है तो इसे हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे यहाँ पर। आगे इसी तरह हमने अनदर एग्जाम्पल लिए हैं 2x + 4y - 12। इसको हम सॉल्व करेंगे। किस तरह करेंगे, x की वैल्यू या y की वैल्यू हम लेट करेंगे, x या y की वैल्यू हम लेट करेंगे। इस तरह से हम एक टेबल बना लेंगे। फिर उसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन लेंगे वहाँ x या y में से किसी एक की वैल्यू लेट करेंगे और फिर हम जो है इस तरह टेबल बना लेते हैं। वी नो डैट इफ़ वी पुट 3 वैल्यूज़ ऑफ x इन द इक्वेशन वी गेट 3 वैल्यूज़ ऑफ y। इस तरह से इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और हम देखेंगे कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल आता है। जब ये पैरेलल आता है तब यहाँ पर दूसरी कंडीशन हो जाती है। थर्ड कंडीशन में फिर हम दो इक्वेशंस लेते हैं और उनको हम सॉल्व करते हैं। एक x या y की वैल्यू हम खुद लेट करेंगे और उनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या देखते हैं कि दोनों स्ट्रेट लाइन या तो पैरेलल आ रही हैं या कोइंसिडेंट हैं या वो एक पॉइंट पर कट करती हैं।